Hello everyone. I hope you are doing well. In last video, we see about various file system in file system hierarchy standards in GNU Linux. Okay, so in this video, we cover why we learn and use GNU Linux. Okay, so let's see one by one. Okay, there are huge number of benefits learning GNU Linux sooner or later in the career, राइट बिकॉज क्या है कि आज जो हम लिनक्स इतना आज ओपन सोर्स होने के कारण जो भी है उसका इतना वास्ट डेवलपमेंट हुआ है सो नाउ इट्स हैव द कंपटीशन विथ माइक्रोसॉफ्ट बट इन organizations big organizations they used generally linux to handle their desktops and servers okay so आजकल ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स को भी उस पे भी कुछ डेवलपमेंट करने के इसमें है सो इन नियर फ्यूचर यू सी दैट लिनक्स इज ऑन our Android phone also, like Android like phones also. So GNU Linux will be in the workplace. Millions of desktop and servers run on GNU Linux. The Android operating system that the smartphone runs on a modified version of GNU Linux. Okay, so so first is our point is Linux is free and open source. Uh, that previous in previous slides I told about it is open source and it is free to access and freely available to do their some advancement in that operating system. So anyone कोई भी इसमें changes कर सकता है because of the free and open source platform. So the word free here does not mean that free of charge but also means freedom. Anyone is free to use this software. Okay, so distribute them freely, even study and modify the source code to suit one's own need. अब इसमें क्या है कि हम अपने अपने तरीके से इसमें जो भी चेंजेस है वो कर पा सकते हैं राइट सो दैट्स वाई इट्स पॉपुलर to in server sites and big organizations to handle this software. Okay, so this operating system. So second one is the Linux operating system is free from viruses. The user need to install any antivirus software. This saves money as well as value time. The user are free from the trouble of updating the virus definitions and checking unknown USB disk that is plugged in. Moreover, antivirus software is in 100% reliable, not 100% reliable. The user always run the risk of losing the data if the computer is infected due to failure of antivirus software. Finally, antivirus software often gives a false alarm and may delete the files assuming the existing of the virus. अब क्या होता है जनरली क्या होता है कि आज जो भी वायरसेस रहते हैं वो ई एक्सी थ्रू आते हैं या फिर नेटवर्क थ्रू आते हैं राइट बट लिनक्स में क्या होता है कि यहाँ पे ई एक्स रन नहीं होती सो वन पॉइंट इज हैंडल्ड वन फॉल्ट एक टैकल हो गया कि उसमें एंटी वायरसेस आने के चांसेस बहुत कम हो गए राइट देन इट रेगुलरली अपडेटिंग मतलब जो भी नया वर्जन आए वो उसमें कोई भी अपडेट बहुत फास्टली अपडेट होता है सो दैट्स वाई viruses unable to analyze to how to affect the operating system linux operating system that's why इसमें जो भी चेंजेस है वो फास्ट होने से उसमें वायरसेस के आने के चांसेस कम हो जाते हैं राइट सो दैट इज द वन पॉइंट एंड इसमें और बहुत सारे जो सेफ्टी मेजर्स है वो ऑलरेडी ले चुके इसमें है सो दैट्स वाई जैसे कि देखो माइक्रोसॉफ्ट में अगर कोई वायरस डेवलप कर रहा है तो वो लिनक्स में हर्ट नहीं कर पाएगा राइट सो दैट इज द अनदर पॉइंट
So that's why its operating system is free from virus. Okay, easy to keep all the software up to date. Proprietary operating system can update themselves, but they cannot update the other software, especially proprietary softwares. The user has to keep track of each application on his own. Linux distribution mostly use free software, so it keeps track of all the software through repositories. Repository is a collection of software Linux distribution on the server. The package manager manages update and operating system as well as the सॉफ्टवेयर पीरियडिकली. अब यहाँ पे क्या होता है कि मैंने अभी कहा था कि जो भी लिनक्स में अपडेशन आता है वो बहुत फास्ट आता है, राइट. उसको क्योंकि वो ओपन सोर्स होने के कारण उसको उसमें अपडेशन हर कोई कर सकता है. दैट्स वाई इट्स it's very much updative than other operating system. एंड इसमें क्या होता है कि प्रोप्राइटरी जो मतलब जो जिसमें जो हम सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं पैसे देके, राइट. सो वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे जनरली कम होते हैं. मतलब उसके लिए उसको स्पेशली उसमें कुछ ना कुछ यही करना पड़ता है, चेंजेस ही करने पड़ते हैं. दैट्स वाई उसमें लिनक्स में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर उतने कुछ रहते नहीं है. इसमें क्या होता है कि रिपोजिटरीज होते हैं. अब रिपोजिटरीज क्या है? कलेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर फॉर अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सर्वर, राइट. तो ये क्या होता है कि एक सर्वर जो भी उसका सर्वर है उस पर वो स्टोर रहेगा एंड उसमें तो अपडेशन चलते ही रहेंगे. एंड वेन एवर वी वॉन्ट वी डाउनलोड एंड इंस्टॉल दैट रिपोजिटरीज ऑन आवर सिस्टम. ओके, सो इसमें चेंजेस फास्टली होते हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ more updative than other operating system. Linux is flexible and easy to customizable. Okay, the user can change the desktop, the position of the menu, status bar, position, style, default file manager, icon theme, and lot more. Almost everything in the Linux is customized. अब यहाँ पे हमें एक रिलायबिलिटी मिलती है कि हम अपने सिस्टम को जैसा चाहे वैसा कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट. So that is the one more advantage in Linux. Okay, excellent software support. Sorry, excellent support. There are thousands of forums, millions of people ready to help open source software users. Each distribution has its own community of users. They help each other. Okay. Many software companies and developers of free software also offer solution to the problems through community platform and also though professional channels. अब कैसा है कि हमारे इंटरनेट में इसके रिलेटेड जो लिनक्स रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर फोरम्स हैं. मतलब क्योंकि देखिए ये एक तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सो दैट्स वाई हर कोई इसे डेवलप कर सकता है, राइट. हर कोई इसमें चेंजेस कर सकता है एंड देन इसमें बहुत सारे कम्युनिटीज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन डील करते हैं. सो दैट्स वाई इसमें जो चेंजेस आएंगे, जो भी सपोर्ट आएगा, मतलब जैसे कि हमें कोई हेल्प चाहिए तो वो भी हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है, राइट. सो दैट इज वन मोर एडवांटेज. ओके, सो here we complete GNU Linux topics and now we move towards computer network. Okay, नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग मतलब जैसे देखिए अगर दो फ्रेंड रहे, अगर उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, सो दैट इज जैसे हम बोलते हैं ना हमारा फ्रेंड हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है. नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क? टू कम्युनिकेट ईच विद इन देमसेल्फ. ओके, सो दैट इज द नथिंग बट नेटवर्क. ओके, सो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में देख लेते हैं. इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स or devices to have communicated within themselves. A computer network consists of a collection of the computer, printers, and other equipment that is connected through so that they can communicate with each other. इसमें क्या होता है कि एक मिनट पेंट ओपन कर लेता हूँ. अगर एक कंप्यूटर सिस्टम दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड रहा तो भी हम इसे नेटवर्क ही कहेंगे.
राइट। अगर मुझे यहाँ से डेटा यहाँ भेजना है तो मैं इजीली भेज सकता हूँ बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क। अब ये जो चीज़ हो गई, ये अब ये वाली जो चीज़ हो गई, इसे हम क्या कहेंगे, नेटवर्क, राइट, बिकॉज ऑफ दिस टू कनेक्टेड कंप्यूटर्स। ओके, सो ये कनेक्टेड है ना। अगर जो भी कोई भी अगर सिस्टम दूसरे सिस्टम या कोई हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहा है, सो दैट इज द नथिंग बट नेटवर्क। ओके, सो वही बोला गया, देखिए, it is a group of interconnected computers or device to have communicate within themselves. A computer network consists of a collection of computers, printers, and other equipment that is connected through together, so they can communicate with each other. Okay. So now our next topic is what are the types of networks. अब क्या है, उसमें तीन टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, दैट इज द लैन, वैन एंड मैन। ओके, there are the three types of network based on the geographical area they covered. अब उसमें क्या होता है कि हर जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से हम इस टाइप को सेट करते हैं। देखिए, लैन, वैन और मैन, ये तीन टाइप के जो नेटवर्क है उसको हम अलग अलग इससे स्टोर करते हैं, राइट। सो अभी हम देखते हैं, एक बार पढ़ लेंगे। There are three types of network based on the geographical area they covered, that is the LAN, MAN, and WAN. The entire use and implementation of these types of depend upon the geographical area they cover. That is, LAN covers the smallest area, and MAN covers the large area than LAN, and WAN comprises all the largest of all. अभी देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? सो दैट इज द नथिंग बट इंटरनेट। वर्ल्ड बिगेस्ट नेटवर्क इज इंटरनेट। उसके ऊपर कोई भी नेटवर्क नहीं होगा, कोई भी नेटवर्क नहीं है। ओके, सो चलो एक एक टाइप देख लेते हैं इसका। लैन, लैन इज द लोकल एरिया नेटवर्क, नथिंग बट लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, लैन, इन शॉर्ट, सॉरी, लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज लैन। लैन cover small geographical area, size is limited to a few kilometers and privately owned. अब ये क्या होता है कि जो भी जियोग्राफिकल एरिया होगा वो इसका बहुत स्मॉल होगा, राइट। और जो भी इसका जो ये है प्राइवेटली ओन्ड रहता है जनरली, क्योंकि छोटे छोटे लैंड्स को मिला के ही मैन अलग अलग नेटवर्क्स बनाए जाते हैं। ओके, तो क्या होता है कि एक मिनट, हाँ, अभी देखिए, अभी यहाँ पे मेरे कुछ 10 सिस्टम, मेरे एक मेरा रूम है, समझ लो मेरा ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, कहीं हमारा कॉलेज भी बोल सकते हो। हमारा कॉलेज जैसे हम एग्जांपल बोल सकते हैं, जैसे हमारे कॉलेज लैब में एक 4 सिस्टम्स कनेक्टेड है इन लैन, दैट इज द लैन, नथिंग बट लैन। अब ये जो लैन है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में लिमिटेड है। अब इसमें हमारे बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्टेड है एक रूम में, राइट। सो इट इज द स्मॉल एरिया वेयर इट प्लेस। ओके, सो यहाँ पे हम सिर्फ कौन सा नेटवर्क यूज करेंगे, दैट इज लैन। ओके, क्योंकि देखिए जैसे जैसे जियोग्राफिकल एरिया बढ़ेगा उसका टाइप चेंज होते जाएगा, राइट। नाउ आवर नेक्स्ट पहले देख लेते हैं इसके यूजेज। एरिया इज लिमिटेड टू एरिया सच एज द ऑफिस बिल्डिंग, होम, हॉस्पिटल, स्कूल। ये क्या है, एग्जांपल है उसके। सो जैसे कि कोई भी बिल्डिंग हो गई जहाँ पे बहुत सारे सिस्टम प्लेस है, जैसे हमारा घर हो गया जहाँ पे हमने 2-4 सिस्टम्स को सीरियली यूज़ किया है। सो उनको कनेक्टेड करने, उनको नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लैन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट।
and it covers a short distance, so the error and noise are minimized. So अभी इसमें क्या है, एक एडवांटेज ये है कि ये जो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो दैट इज द स्मॉल, सो दैट्स वाई इट मिनिमाइज नॉइज एंड एरर, यानी जो उसके जो नेटवर्क में एरर आने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं कि नेटवर्क कट हो जाता है, राइट? सो दैट्स वाई वी कांट कम्युनिकेट विथ अदर नेटवर्क, सो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम इज नॉट अराइज हियर बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट डिस्टेंस. सो यहाँ पे कोई एरर और नॉइज आने के चांसेस कम हो जाते हैं. लैन इज इजी टू सेटअप. ये इजी टू सेटअप होता है क्योंकि 4-5 सिस्टम्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, कम्युनिकेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, राइट? डेटा ट्रांसमिट्स एट एवरी फास्ट, वेरी फास्ट रेट एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर लिंक आर लिमिटेड. अभी इसमें क्या होता है कि जो भी नंबर ऑफ सिस्टम्स है वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं. जो भी एक ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 होंगे, 15-20 होंगे, बस उसके ऊपर नहीं हो सकता है, राइट? सो दैट्स वाई जब भी जो डेटा ट्रांसमिशन जो होता है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर टाइप. ओके, सो एंड इट इज़ लेस एक्सपेंसिव हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑल्सो लो, राइट? सो उससे क्या होगा, हमारा जो एक्सपेंसिव जो हार्डवेयर, जैसे कि एरिया अगर मुझे छोट कम करना है तो उसके लिए वायर, मुझे लाइन केबल कम लगेगा, राइट? सो दैट इज़ द हार्डवेयर, नथिंग बट हार्डवेयर. सो उसको, उसका रेट जो भी खर्चा आएगा मुझे वो कम आएगा, राइट? और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आएगा. सो दैट इज़ द लैन. ओके, so our next type is MAN, that is the metropolitan area network, right? MAN is the large area that than that of a LAN or the smaller area as compared to WAN. ठीक है. अभी मैन जो है ये जनरली बड़े सिटीज़ में यूज़ किया जाता है. जैसे कि अगर सिटी में मुझे, अगर हमने लैन के बारे में बात की थी, जैसे मुझे स्कूल कॉलेजेस में अगर केबल नेटवर्क को सेट करना है, सो दैट्स दैट आई यूज़ लैन. ओके, लेकिन अगर मुझे पूरे सिटी में अगर कोई नेटवर्क लगाना है, दैट इज़ आई हैव मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे आर, अगर मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसके छोटे छोटे ब्रांचेस है अगर पूरे सिटी में, सो दैट्स वाई मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे लैंड्स कनेक्टेड करने पड़ेंगे एंड दैट लैन इज कनेक्टेड टू मैन. क्या होता है, इस तरह का होता है. देखिए, जैसे कि ये एक लैन हो गया एंड अगेन यहाँ पे एक मैं लैन बना देता हूँ. ये एक लैन है, राइट? सो ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, राइट? एंड हियर इज द होस्ट जो मुझे कनेक्ट करेगा इससे. ओके, सो इससे ये कनेक्ट हो गया और इससे ये कनेक्ट हो गया, राइट? अभी ये एक लैन है और ये मैं इसे लैन बी कहता हूँ. लैन लैन बी, ये लैन ए हो गया, ये लैन ए. It is relatively expensive than WAN and MAT, and a communication medium used for a WAN is telephone network or satellite link. यहाँ पे हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि टेलीफोन लाइंस हो गए या फिर सैटेलाइट लिंक्स हो गए, ये हम यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट with the other system. Okay, so due to long distance transmission and noise and error trends to more in WAN. Okay, अब इसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस होने के वजह से इसमें एरर्स, जैसे कनेक्शन एरर आना, नॉइज आना, ये कॉमन बात है इसमें, राइट? सो दैट इज द वाइड एरिया नेटवर्क. सो student, today we stop here. In next video we see the network configurations and see what is the peer-to-peer networks and see client server architecture. Again we see our last topic, that is the internet, and
Okay, so student, stay safe. Goodbye.